Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, we are doing our chapter number 3, that is human reproduction. ठीक है जी, in the last sessions we discussed about the reproductive system of male, reproductive system of female, and at last in the last session I said that we will discuss the differentiation of gametes. Students, differentiation of gametes, the latter part is covered in the formation of sperms and formation of the ovum. ठीक है जी. So today we will discuss about the menstrual cycle. What is menstrual cycle? The gamete formation in females is a cyclic activity that takes about 28 to 29 days and involves changes in the structure and function of the entire reproductive system. ठीक है जी. It is called the menstrual cycle. The menstrual cycle occurs only in primates. Primates means monkeys, apes and human beings. The later do not change, means the human beings do not show any cyclic change in sex urge and permit copulation at the time of menstrual cycle. Human female may accept a male at any time, though there is a variation in her level of desire. Students, firstly I will told you about the female fertility. Human female fertility period extend from the puberty at about 13 years to menopause. Menopause occurs at the age of 45 to 50 years. During this period, students, generally one egg is released. I have already told you about that. Every 28 days, so alternatively from the two ovaries. But have you think that how an ovary knows its turn and which egg out of the thousands in an ovary is to be released? We don't know. ठीक है जी. This question is unknown yet. Since the female is fertile for about 32 years and about 13 eggs mature each year, only about 416 eggs have a chance of reaching maturity. ठीक है जी. 32 years के लिए अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज में रहती है तो उस टाइम के दौरान सिर्फ 416 eggs ही मैच्योर होते हैं. The remaining eggs along with the surrounding follicles break down and are absorbed in the ovary. ठीक है जी. The degenerative process is called the follicular atresia. The ovaries contain 2 million or more than eggs primary in the form of primary oocytes. ठीक है जी. 6 months before the birth of the female and about 1 million at the time of the birth. This I already told you. And only 40,000 remain by the time of the puberty. ठीक है जी. Now the first menstruation begins at puberty and is called the menarche. Menarche is the starting of menstrual periods in females. The menstrual cycle in human lasts 28 to 29 days. The days are numbered from the first day of blood flow in the menstrual cycle. The days are numbered from the first day. This is the first day, the beginning of the flow of blood in menstrual period. In other words, the cyclic event starting from the first day of menstruation to the start of the next cycle is called the menstrual period. This is known as the whole menstrual period. In human females, menstrual cycle ceases around 50 years of the age and this stage is termed as menopause. Students, we will discuss this menstrual cycle. The menstrual cycle consists of 3 phases. One is follicular phase. ठीक है जी. Second is luteal phase. This is the follicular phase. This is the luteal phase. This is luteal phase. यहाँ तक. ठीक है जी. And this is the menstrual flow phase. This is the menstrual flow. हाँ जी. First we will discuss about the follicular phase. Follicular phase. This phase lasts for 14 days. It comprises of the following events. तो इसमें क्या होता है? द इंटीरियर पिट्यूटरी लोब सिक्रीट्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. यू नो वेरी वेल. ठीक है जी. दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन stimulates the growth of only selected primary ovarian follicle and its maturation of the primary oocyte in this follicle. ठीक है जी. This follicle also stimulates the follicle cells to secrete estrogen. Estrogen is a female sex organ. This estrogen inhibits the secretion of follicle stimulating hormone and stimulates the secretion of luteinizing hormone from the interior pituitary.
ठीक है जी। तो जो हमारी इंटीरियर लोब है पिट्यूटरी की, वो क्या सिक्रीट करती है, FSH सिक्रीट करती है। ठीक है जी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करती है। वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, प्राइमरी oocytes की ग्रोथ करता है, प्राइमरी oocytes की ग्रोथ करता है। ठीक है जी। और ये प्राइमरी oocyte क्या करते हैं, ये ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। ठीक है जी। तो ये ईस्ट्रोजन क्या करता है, दिस ईस्ट्रोजन इनहिबिट्स, ये ईस्ट्रोजन ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ग्रोथ रिलीजिंग को रोकता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करता है फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल्स को बस्ट करता है, उसको बस्ट आउट कर देता है एंड इजेक्ट इट्स एग इनटू द फेलोपियन ट्यूब। दिस इज नोन एज द ओवुलेशन। ये फॉलिकुलर फेज सारा ये यहाँ तक होता है। ठीक है जी। ओवुलेशन यहाँ पे एग है जो वो बन के ओवरी से बाहर आ जाता है। ठीक है जी। ये जो मैंने इवेंट बताई है आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाली, वो 5 से लेके 14 डेज तक होती है। 1 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, मींस फ्लो ऑफ ब्लड। तो इसी फर्स्ट डे से ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग की हार्मोन की दोबारा से सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। ये सिक्रीट होके क्या करता है, सिर्फ सिलेक्टेड प्राइमरी ग्रोथ हार्मोन, सिर्फ प्राइमरी oocytes को डेवलप करता है। ठीक है जी। और यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। वो ईस्ट्रोजन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सप्रेस करता है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्रो करता है। ठीक है जी। 1 से लेके 14 डे तक ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो इसका ग्राफ इंक्रीज होता जाता है। ठीक है जी। जब पीक पे आ जाता है ये ग्राफ, तो उस टाइम ग्राफियन फॉलिकल है जो वो बस्ट आउट हो जाता है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो ग्राफियन फॉलिकल को बस्ट आउट कर देती है 14 डे तक, और वो एग है जो वो वहाँ से बस्ट आउट होके बाहर ओवम फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, और दोबारा से फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो ग्राफ है नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। दूसरी साइड जो ईस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है, वो दूसरी साइड क्या कर रहा है, इट ऑल्सो प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन एंड नरिशमेंट ऑफ द फीटस। वो इन्हीं 14 डेज में दोबारा से यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा है, ताकि जाइगोट आएगा और जाइगोट की इम्प्लांटेशन होगी और वो डेवलपिंग फीटस को नरिशमेंट देगा। ठीक है जी। तो जो वॉल है यूट्रस की वो क्या हो रही है, स्टार्टिंग में इन 5 डेज में तो वो बड़ी थिन होती है, लेकिन जैसे ही 5th डे खत्म हो जाता है तो वो दोबारा से थिक होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। और उसकी प्रोलीफरेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके एपिथेलियल सेल्स हैं जो प्रोलीफरेट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स के साथ। ठीक है जी। ग्लैंड्स डेवलप विच सिक्रीट न्यूट्रिटिव फ्लूइड इनटू द यूटेरिन कैविटी। दूसरी साइड फिर क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन द लाइनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज थिकन्ड एंड इट्स सीलिया एंड मूवमेंट आर इंक्रीज। अब देखिए 14 डे में एग रिलीज हो चुका है, तो यही ईस्ट्रोजन क्या करेगा, फेलोपियन ट्यूब की वॉल को थिक करेगा, उसके सीलिया की मूवमेंट को इंक्रीज करेगा, ताकि वो ओवम को यूट्रस में भेज सके। तो ये था सारा 14 डेज तक का पीरियड। 1 to 5 डेज को हम मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, 5 to 9 को पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, और 9 to 14 को क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूटियल फेज, जो 15 से लेके 28 डेज तक होता है, जो 15 से लेके 28 डेज में तक होता है, किसी में 25 डेज तक होता है। ठीक है जी। दिस फेज लास्ट वैसे मिनिमम ये 10 to 15 डेज होता है, बट अगर हम 10 कंसीडर करते हैं तो 15 से 25 डेज तक होगा। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग इवेंट्स। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की पीक है वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है विद प्रोलैक्टिन हार्मोन फ्रॉम द इंटीरियर लोब। ठीक है जी। अगर वो पीक नीचे गिर रही है, मींस उसका लेवल कम हो रहा है, तो इंटीरियर लोब में से हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये फॉलिकुलर सेल्स, ये जो ग्राफियन फॉलिक्यूल यहाँ पे बस्ट आउट हुआ है,
उस प्रोलैक्टिन हार्मोन उस ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में बदल देंगे। ठीक है जी। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, इट सिक्रीट्स अनदर ओवेरियन हार्मोन नेम्ड एज प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है जी। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इट वेट करेगा कि फर्टिलाइजेशन अगर हो रही है तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। देन द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्राडल continuing in developing the endometrial lining of the uterus। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल बस्ट आउट हुआ है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हुआ है। अब वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है, साथ में ईस्ट्रोजन तो हो ही रहा है, दोनों मिलकर यूट्रस की लाइनिंग को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ द फीटस इन द यूटेराइन वॉल। ठीक है जी। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स मींस यूट्रस के अंदर वाली जो ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट ए न्यूट्रिटिव फ्लूइड फॉर द फीटस। ठीक है जी। हेंस दिस इज नोन एज द सिक्रीटरी फेज। तो ये क्या कर रहा है, इसलिए ये क्या है हमारा सिक्रीटरी फेज। ये प्रोलिफरेटिव फेज क्यों है, क्योंकि 9 से लेकर 20 डेज तक जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग प्रोलिफरेट होती है, एंडोमेट्रियल वॉल प्रोलिफरेट होती है विद ब्लड वेसल्स प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। दिस इज द सिक्रीटरी फेज। ठीक है जी। लास्ट इज द मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज। दिस फेज लास्ट फॉर अबाउट मिनिमम 4 days, मैक्सिमम इट वेरीज। ठीक है जी। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द सेकेंडरी oocyte अंडरगोज ऑटोलाइसिस। ठीक है जी। ऑटोलाइसिस मीन्स अपने आप डिजनरेट हो जाना एंड कंसिक्वेंट फॉल इन द रिलीज ऑफ LH फ्रॉम द ओवरी। तो यहां तक आते आते ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। रिडक्शन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉजेज रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है जी। सिक्रीटरी फेज के दौरान ही 24 डेज तक आते आते तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम है जो वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वैल्यू है जो वो मतलब अमाउंट है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है। अगर इन दिनों में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल फ्रॉम 9 to 16 डेज तक। ठीक है जी। क्योंकि 9 to 13 तक वो प्राइमरी फेज में होता है, फिर उसके बाद वो सेकेंडरी फेज में बिल्कुल डेवलप हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल इन 9 to 16 डेज तक। आफ्टर दैट दिस इज स्टार्ट्स डीजनरेटिंग। ठीक है जी। द ओवम स्टार्ट्स डीजनरेटिंग और 24 तक आते आते कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाता है। देन द यूट्रस लाइनिंग डाइज ऑफ। तो यहाँ पे आके 28 तक आके, ठीक है जी, और 25 तक आके 24 तक सिक्रीटरी फेज है हमारा। सपोज 24 तक सिक्रीटरी फेज है तो 25 तक आके क्या होगा, जो यूट्रस है, यूट्रस लाइनिंग भी मतलब डाई होना खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट भी खत्म हो रही है। प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट खत्म हो रही है तो इट मीन्स अब यूट्रस की एंडोमेट्रियल वॉल को मतलब प्रोलिफरेशन करने वाला कोई नहीं है, तो इट आल्सो द वॉल आल्सो स्टार्ट्स डीजनरेटिंग। द कास्ट ऑफ यूट्राइन एंड फैलोपियन ट्यूब टिश्यूज ब्लड एंड इट मतलब सारा एंडोमेट्रियल वॉल की वेसल्स में से रप्चर होके बाहर आ जाएगा एंड इट स्टार्ट्स पासिंग एट द एंड ऑफ द 28 डे फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द वेजाइना। ठीक है जी। दिस इज नोन एज द मेंस्ट्रुएशन फ्लो। अगेन दिस साइकिल स्टार्ट्स सेम वे फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द ovary. Next, if fertilization occurs, students, if fertilization occurs, the fetus is implanted in the endometrial wall. ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है तो fertilization, if fertilization occurs, fetus is implanted in the endometrial wall, the trophoblast cells of the developing placenta। तो उसी टाइम जो प्लेसेंटा है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है फीटस के आसपास। द प्लेसेंटा सिक्रीट्स HCG। HCG मीन्स ह्यूमन क्रोनिक
ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन ये एक हार्मोन है, तो प्लेसेंटा ये सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो HCG है, दिस इज द टेस्टेड डिटेक्शन फॉर प्रेगनेंसी। ये ब्लड में यूरिन में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो यूरिन से ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। अगर यूरिन में HCG की अमाउंट आती है तो फर्टिलाइजेशन इज कन्फर्म्ड। ठीक है जी। दिस हार्मोन मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, ये हार्मोन है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा। सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन को मेंटेन करेगा। दीज टू हार्मोन्स चेक द ब्रेकडाउन ऑफ, ताकि जो प्रोजेस्टेरॉन खत्म ना हो और यूट्रस की वॉल है वो मेंटेन रहे। अगर ये द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उसके बाद मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स नहीं स्टार्ट होते हैं, इट मीन्स दैट आर द अर्लीस्ट साइंस ऑफ द प्रेगनेंसी। By the 16th week of the pregnancy, the placenta produces estrogen and estradiol for normal pregnancy, and now unnecessary corpus luteum undergoes shrinkage. मतलब 4 मंथ के बाद जो प्लेसेंटा है वो खुद ईस्ट्रोजन और ईस्ट्राडल रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास मिसकैरेज। Premature degeneration of corpus luteum is the common cause of miscarriage at about 10 to 12 weeks of pregnancy. कई बार क्या होता है, 10 to 12 वीक्स की प्रेगनेंसी में जब कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक डाउन होता है तो उसी टाइम वो प्लेसेंटा को भी ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डिजेनरेशन हो जाती है एम्ब्रियो की, और दैट इज नोन एज मिसकैरेज, प्रीमेच्योर डिजेनरेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी प्रेगनेंसी टेस्ट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी HCG में बी डिटेक्टेड इन द यूरिन एंड दिस इज द बेसिस ऑफ द प्रेगनेंसी टेस्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? Artificial insemination is a technique to make a female pregnant by artificially inducing semen into the vagina. Artificial insemination. It is a technique to make female pregnant by introducing semen into vagina artificially. हाँ जी। What is the use of artificial insemination? Artificial insemination is commonly used in farm animals, cows and buffaloes. ठीक है जी। Semen of good quality male animal is collected, preserved, and then it is used when required. What are the advantages of artificial insemination? I am telling you about an animals. Artificial insemination has 3 advantages. तो मैं यहाँ लिख क्यों नहीं रही, क्योंकि मैं सिर्फ एनिमल्स के एडवांटेज बता रही हूँ, वो हम आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग की यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हैज एडवांटेजेस। फॉर एग्जांपल, सीमन ऑफ गुड क्वालिटी मेल कैन बी यूज्ड टू इंसेमिनेट अ नंबर ऑफ फीमेल्स एंड प्रिजर्व्ड सीमन कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंस प्लेसेस। ठीक है जी। एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअल डिजीज आर चेक्ड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एंड व्हाट इज यूज इन ह्यूमंस? यूज इन ह्यूमन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज ह्यूमंस में क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बी यूज्ड इन ह्यूमन बीइंग्स फॉर इंप्रूविंग द चांस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है जी। फॉर इंप्रूविंग द चांस ऑफ फर्टिलिटी। कैसे? सपोज अ मैन मे बी इनफर्टाइल ड्यू टू इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्पर्म्स, weak or premature ejaculation or inability of penis to undergo erection and enter into the vagina. ठीक है जी। or normatized sperms. The husband of semen may be collected, concentrated and introduced artificially into the wife's vagina. This method is called artificial insemination.
इफ द हस्बैंड स्पर्म्स आर फॉल्टी सम डोनर स्पर्म्स मे बी यूज्ड। ठीक है, इट पोजेज मोरल एंड लीगल, बट ये जो है जिसमें किसी और का सीमन यूज़ किया जाता है, इसकी वजह से हमारी कंट्री में लीगल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। ठीक है जी, तो दिस इज़ नॉट followed properly. Children produced by this artificial insemination is known as the test tube babies. Students, in the next session we will discuss about the fertilization in human beings. Thank you and have a nice day.